So, good morning students, myself Professor P.B. Ingde, and today we have to conduct the lecture number 43. Okay. So, write down the today's title. Our today's title is Heat Dissipations from a fin okay, what is the title? Heat dissipation from a fin losing heat dissipation from a fin losing heat at tip. Okay, at a tip. So this is our today's titles. So what is the title, guys? You see, heat dissipations from a fin losing heat at a tip. And what is the length? The length of the fin is finite now. Okay. So heat is dissipated from a fin, from which portion? From the tip section portions. Okay. So let's draw the diagram here. You see, first of all I draw this diagram, graphicals. I draw this graph. Yes or no? Yes, this much graph is draw. Then I draw the diagram of the fins. Look at the diagram of the fins. This is the diagram of a fins. Okay, this much. This is the diagram of a fin, guys. Okay. So I draw this simple diagram for your understanding point of view. This is the fin diagram and this is the graphical representation. So what type of the graph we are to getting here, you observed. So here, guys, suppose this is the fin. What is the length of the fin? The length of the fin is L. The length of the fin is L. In along the which direction? X direction. So here x is equal to L. And at this position x is equal to 0. We know that. This is the x directions. Okay. This is the y directions. This is what is the temperature of a fin is T. Okay. So at the base of the fin, what is the temperature here? The temperature is T0. We know that all these things. At the base, what is the temperature? T0, which is very high. Suppose this fin is attached with this surface. ये फिन ये सरफेस को अटैच है, तो इसका बेस का टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? एकदम ज़्यादा होगा, जो मैंने लिखा T0. दिस टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड इट इज शो बाय द लेटर T0. Then after that, from this fin the heat is lost by the conduction as well as heat lost by convections. Okay. So how the graph we have to getting here, you see. So I extend this portion this much. Yes or no? Yes. So from the fin the heat is continuously lost. This is T0 and we have to getting the graph shape in this way. I draw the shape of the graph. How to getting the graph shape? The graph is getting in this way. Like that. Yes or no? Yes. The heat is lost. Look at the title and understand the graph. Heat dissipation from a fin losing heat at a tip. मतलब ये जो अभी टिप है ये इंसुलेटेड है क्या? नहीं. इसके पहले की जो हमारी केस थी उसके अंदर जो टिप था बच्चों वो इंसुलेटेड था. इसलिए जो हीट लॉस हो रही थी वो बिफोर द
टिप ट्रांसफ़र हो रही थी सिस्टम से सराउंडिंग में। अब यहाँ पे ये जो टिप है ये इंसुलेटेड ही नहीं है, तो हीट लॉस हर जगह से भी होंगी और ये टिप से भी होंगी। अब ये टिप के आगे क्या है, हमारे पास में सराउंडिंग है, तो ये टिप से सराउंडिंग में किस टाइप की हीट लॉस होंगी, कन्वेक्शंस। फ्रॉम द टिप द हीट विच इज लॉस इनटू द सराउंडिंग बाय द कन्वेक्शन मोड एंड थ्रू द फिन द हीट इज ट्रांसफर बाय कंडक्शन मोड। यस और नो? यस। यहाँ से ये सॉलिड पोर्शन है तो कंडक्शन होगा और इसके बाहर भी हीट ट्रांसफर होंगी, तो वो कौन से मोड से होंगी, कन्वेक्शन से। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट वी गेटिंग द ग्राफ शेप इज हियर लाइक दैट इन दिस वे। Yes or no? Yes. The graph is getting in this way here. Okay. This is our this much portions. Along the which directions? X directions. बराबर है। अब यहाँ से जो इतना पोर्शन जो है बच्चों, दिस पोर्शंस, यहाँ से यहाँ तक की जो हीट है वो क्या है, कंडक्शन, और यहाँ से जो ये पोर्शंस है ये कौन सा है, कन्वेक्शंस। बराबर, यहाँ तक आ गया हमारे पास में कंडक्शंस और इसके आगे बच्चों क्या आ गया, कन्वेक्शन। तो इसलिए ग्राफ हमको इस तरह से मिला। यहाँ का टेम्परेचर मैंने बना दिया कौन सा, एटमॉस्फेरिक TA टेम्परेचर्स। बाद में फिर और उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये यहाँ तक की मैंने पोजीशन बता दी। तो यहाँ तक का ये ग्राफ आया कंडक्शन से, ये फिन के टिप से जो लॉस हो गई हीट सराउंडिंग में, सराउंडिंग का फाइनल टेम्परेचर क्या रहेगा, TA। तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक अगर ऐसा समझा, A से B कंडक्शंस और B to C यहाँ से कन्वेक्शंस। ओके, तो ये जो B to C बता रहा हूँ मैं कन्वेक्शंस, ये कौन से मोड के लिए है, ये टिप से सराउंडिंग में जाने वाली हीट, क्योंकि हीट जो है अभी लूज हो रही कहाँ से, एट द टिप ऑफ द एंड गाइज। तो दैट्स वाई दिस मच पोर्शन फॉर द कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर्स। ओके, सो यू सी हियर दिस इज अलॉन्ग द this T temperatures along this direction. T is the temperature of a fins. Okay, this is the X direction. At this X is equal to 0, the temperature is T0 will be there. So here you observed guys, what we conclude the one convections. So whatever the heat conducted in a fin having length L, okay, हीट कंडक्टेड इन अ फिन, इधर देखो अभी मैं क्या लिख रहा हूं, हीट कंडक्टेड टू द फिन्स। अब इसके पहले एक देखिए इसकी बाउंड्री कंडीशन कौन कौन से आएंगी, इसकी बाउंड्री कंडीशन लिखता हूं मैं, बाउंड्री कंडीशंस। तो बाउंड्री कंडीशन कौन से आ गई बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आ गया यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, तब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास में, थीटा 0। ये तो हमारे को ऑलरेडी पता है। T का वैल्यू कितना हो जाएगा, T0 हो जाएगा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर फिन के अंदर, जो कहाँ पे अटैच है, ये ऑब्जेक्ट के साथ, ये ऑब्जेक्ट के साथ में कनेक्ट है फिन। तब मैंने x की वैल्यू कितनी बता दी, फिन की 0, तब थीटा का वैल्यू हो गया थीटा 0। अब बाद में देखिए सेकंड बाउंड्री कंडीशन में, अब फिन का कंडक्शन होगा जितनी फिन की लेंथ है, कितनी लेंथ है बच्चों, फिन की L है, यहाँ से यहाँ तक कंडक्शन चल रहा पूरा ये सॉलिड के अंदर, लेकिन ये टिप से क्या हो जाएगा, फिर कन्वेक्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये जो फिन का ये एंड है ये कैसा है, इंसुलेटेड है क्या, नहीं, इसमें से हीट लूज हो रही, तो फिर एनर्जी बैलेंसेस जो लगेगा सेकंड, ये हीट conducted to the fin, okay, at x is equal to L,
मतलब यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जो रहेगा ये कंडक्शन के लिए रहेगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन गया मेरे पास में, इज इक्वल टू द एक्स इज इक्वल टू यल इज इक्वल टू, ये लग जाएगा इक्वल टू, क्या लग जाएगा बच्चों, यहाँ से कितना हो रहा, कन्वेक्शन जा रहा, सो इज इक्वल टू द हीट कन्वेक्टेड फ्रॉम द टिप एंड ऑफ फिन into the surroundings. Yes or no? Yes guys. So this is the formula I am write down here. Heat conducted to the fin at x is equal to L is equal to the heat convected from the tip end of a fin into the surroundings. तो इन दोनों के फार्मूले हमारे को पता है। क्या फार्मूले बच्चों बताइए? हीट कंडक्टेड टू द फिन ड्यू टू द विच लॉ, फूरियर्स लॉ। क्या फार्मूला आएगा? Q कंडक्शंस इज इक्वल टू Q कन्वेक्शंस। तो फिर कंडक्शन का फार्मूला बताइए गाइज, एट x इज इक्वल टू यल, कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू यल, तो क्या फार्मूला है, माइनस K ACS dt अपॉन dx एट x इज इक्वल टू यल इज इक्वल टू, इसके लिए क्या आएगा, H A S, सराउंडिंग के लिए ले रहा हूं भी मैं, AS सराउंडिंग ASU इंटू व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ फिन माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो ये मिल गया हमारे को, व्हाट इज द फार्मूला, T माइनस TA। समझ में आया सबको? ये फार्मूला लग गया कंडक्शन के लिए और ये लग गया फार्मूला कन्वेक्शन के लिए। अब फिन का जो अब क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, अब ये देखिए, ये फिन का क्रॉस सेक्शनल एरिया इतने ही पोर्शन में से, इधर देखिए समझो, अभी अब ये फिन है हमारे पास में, ये फिन का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब यहाँ से हीट कहाँ जाएंगी, सराउंडिंग में जाएंगी, तो इसके सामने ये जो एरिया है ये किसका रखा है बच्चों, सराउंडिंग का रखा है। और हीट कहाँ से आ रही, इतने ही पोर्शन से आ रही, इधर से आ रही क्या, नहीं, तो फिर इतने ही पोर्शन में हीट किधर जाएंगी, इतने वाले यहाँ के सराउंडिंग के एरिया में, फिर बाद में जाके वो ट्रांसफर होंगी। तो फिर इसके वजह से हमने एक कंसेप्ट यहाँ पे अज्यूम कर लिया, बिकॉज ऑफ दैट ACS इज इक्वल टू ASU। ओके, सो ड्यू टू दिस व्हाट इज द इक्वेशन, तो ये ACS ये ASU कैंसिल हो गया बच्चों, तो फिर क्या बचेगा यहाँ पे देखिए, फिर व्हाट इज द रिमेनिंग इक्वेशंस, dt अपॉन dx इज इक्वल टू H, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा अपॉन K, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, T माइनस TA। T क्या है, टेम्परेचर ऑफ फिन, A है टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फियर, सो वी गेटिंग दिस इक्वेशंस, dt अपॉन dx एट x इज इक्वल टू L, कौन से पोजीशन के लिए, यहाँ से इतनी लेंथ के लिए, इज इक्वल टू H थीटा अपॉन K गाइस, ये इक्वेशन हमको मिल गया। अब देखिए, ये साइड से भी मैं सॉल्व करता हूँ। स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट था हमारा, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था बच्चों, जो मैंने स्टैंडर्ड डेरिवेशन प्रूव किया था वो क्या था, थीटा इज इक्वल टू C e टू द पावर mx प्लस C2 e टू द पावर माइनस mx। अब बाउंड्री कंडीशन लगाई यहाँ पे, क्या बाउंड्री कंडीशन है अपने पास में, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा 0। तो फिर ये क्या फार्मूला बनेगा, थीटा 0 C1 प्लस C2, क्योंकि e टू द पावर 0 की वैल्यू 1, e टू द पावर माइनस 0 की वैल्यू भी 1, तो क्या फार्मूला बना, थीटा 0 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, इसको मैंने बना दिया इक्वेशन नंबर 1 स्मॉल वाला। ओके, नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारे पास में, देखिए नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है गाइस, नेक्स्ट है अभी x इज इक्वल टू L, व्हेन x इज इक्वल टू L। अब देखिए फिर ये इक्वेशन, थीटा C1 e टू द पावर mx प्लस C2 e टू द पावर माइनस mx,
theta is replaced by t minus ta c1 e to the power mx plus c2 e to the power minus mx। अब x इज इक्वल टू यल होना हमको ये सिचुएशन के लिए, तो ये इक्वेशन को हम क्या करेंगे अभी डिफरेंशिएट। क्यों डिफरेंशिएट करेंगे? क्योंकि हीट का फ्लो हो रही अक्रॉस द लेंथ इन विच डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन। सो देयरफॉर वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशंस। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे डिफरेंशिएट, इसको करता हूँ मैं इक्वेशन नंबर ए। सपोज डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो देखिए अभी क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं डी टी अपॉन डी एक्स। इसका तो ये जीरो आ गया गाइज, ये आ जाएगा c1 e टू दी पावर mx और डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव यम कंपोजिट फंक्शन है, तो अभी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। अभी यहाँ पे आएगा अभी माइनस c2 e टू दी पावर mx इंटू यम। ये माइनस क्यों आया समझा ना? ये सपोज प्लस है, इसका डेरिवेटिव एज इट इज ये माइनस यम प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस, इसलिए मैंने डायरेक्ट माइनस साइन लिखा। तो डी टी अपॉन डी एक्स c1 e टू दी पावर mx इंटू यम माइनस c2 e टू दी पावर माइनस mx इंटू यम। अब ये जो सिचुएशंस है ये कौन से सिचुएशन के लिए है? जब हमारे पास में x की वैल्यू कितनी है अभी? यल है, तो x की वैल्यू यल पुट कीजिए। अब इसके अंदर क्या चेंज आएगा देखिए। So what is the change? dt upon dx at x is equal to L is equal to what is? You put the values here. M c1 e to the power ml minus m c2 e to the power minus ml। समझ में आया ना? क्यों ml? क्योंकि ये जो x है x रिप्लेस हो गया अभी यल से, क्योंकि फिन की लेंथ कितने हमारे पास में? यल है। सो वी गेटिंग दिस इक्वेशन, यू राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स इन योर बुक्स। ओके, सो आफ्टर गेटिंग दिस, सपोज आई कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर बी, बराबर है। अब यहां पे देखिए मैंने डी टी अपॉन डी एक्स एक्स इज इक्वल टू यल की वैल्यू कितनी लिखी है? एच थीटा अपॉन के, तो ये रिप्लेस हो जाएगा एच थीटा अपॉन के से ये टर्म, तो मैं ये टर्म यहाँ पे भी लिखता हूँ। देखिए एच थीटा अपॉन के इज इक्वल टू यम कॉमन है c1 e टू दी पावर ml माइनस c2 e टू दी पावर माइनस ml। Okay, so we have to get these relations. Which relation you have to get? We get this h theta upon k is equal to m c1 e to the power ml minus c2 e to the power minus ml, guys. Now then what we do here now, adjustment, you see from equation 1 okay, so after getting this equation dt upon dx x is equal to L, what is? Here is the minus sign. So this dt upon dx x is equal to L is replaced by this equation. What is? This is our initial case. Heat transfer by conduction is equal to the heat transfer by convection. So here is a minus sign. First I am write down, I think I not write down the minus, you write down here minus signs. So this is replaced by now minus h theta upon this term and this. Okay, so how solve this process?
see here. So here C1 e to the power ml minus C2 e to the power minus ml is equal to, this m is multiply here, so what is h theta upon k into m, guys. We getting these equations. So after getting this equation, suppose this is equation number C. Now we have to already find out which one, this one. What is the value of the theta 0? C1 plus this one. So we determine the value of the C2 from equation 1. So from equation 1, small 1, what is the value of C2? C2 is theta 0 minus C1. So put this C2 in equation number C. Okay, I erase this portion also. And this theta is also here. What is the, guys, this value theta? If you consider this, but what is when x is equal to L? Okay, x is equal to L, so this is replaced by what is ml. So theta is replaced by C1 e to the power ml. Why ml? Because x is equal to L. X is replaced by this term. X is replaced by L. C1 e to the power ml plus C2 e to the power minus m into L. In that equation change, this x is replaced by the value of the L. Why? Because we consider the length of the fin. And what is the length of the fin? The length of the fin is L is here, guys. Okay, do you understand the concept? Okay. So after getting these two values C2 and theta, so put in equation. So from equation 1 and this, so put C2 and theta in equation C. कहाँ पुट कर रहा हूँ मैं बच्चों? जाके इसको C में जाके अभी पुट कर रहा हूँ. तो देखिए अभी क्या चेंज होगा C का इक्वेशंस. C1 e to the power ml minus C2 is replaced by theta 0 minus C1 into e to the power minus ml is equal to I erase this term now. Is equal to what is minus h, theta is replaced by C1 e to the power ml plus C2 e to the power minus ml upon what is km, right? So solving this bracket completely, what is the solutions? First we solve here C1 e to the power ml minus complete term now, minus theta 0 e to the power minus ml. इसको मैंने ये मल्टीप्लाई किया, अभी माइनस माइनस ये प्लस, ये हो गया C1 e to the power माइनस ml. यहाँ पे भी आप ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? माइनस एच अपॉन के एम C1 e to the power ml प्लस अब यहाँ पे भी चेंज करना है बच्चों. C2 की वैल्यू थीटा 0, C2 आ जाएगा यहाँ पे थीटा 0 माइनस C1 यहाँ पे, हाँ ये जगह पे. तो पहला टर्म आ गया थीटा 0 इंटू जी टू दी पावर माइनस ml माइनस, और ये माइनस, ये आ जाएगा C1 e टू दी पावर माइनस ml. ये डायरेक्ट सॉल्व किया मैंने, के एम इसको मल्टीप्लाई हर जगह पे, ये आ जाएगा इसको मल्टीप्लाइड बाय एच अपॉन के एम. ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता सॉल्व. अब ये इसको मल्टीप्लाई, ये पूरे ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट को भी मैं मल्टीप्लाई करके देता हूँ. अभी यहाँ पे ये एक स्टेप आपने एक्स्ट्रा लिख लेना अभी. सो माइनस एच अपॉन के एम माइनस व्हाट इज C1 e टू दी पावर माइनस ml इंटू एच अपॉन के एम. ये पूरा डायरेक्ट मैंने अभी सॉल्व कर दिया.
अब ये पूरा सॉल्व होने के बाद में आप देखिए जो C1 की टर्म है वो एक तरफ लिए और थीटा 0 की टर्म एक तरफ. सो वी सॉल्व इज हियर. लुक एट हियर नाउ. C1 e to the power ml. Then another C1, which one? This one, plus C1 e to the power minus ml. Okay. Now shifted this term is in this direction. Okay. So what is remaining? Minus become plus h upon km into C1 e to the power minus, sorry, here is a plus ml. Okay. This is also the what is plus term. We shifted here. This is the, you see here the once again minus h upon km. So minus h upon km. This is minus C2 is replaced by, I understand you once again. कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, मैं समझा के देता हूँ आपको. C2 की वैल्यू कितनी है? थीटा 0 माइनस C1. अब ये माइनस उसको मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस का क्या रहेगा बच्चों यहाँ पे? माइनस. फिर बाद में ये माइनस और ये माइनस, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा प्लस. समझ में आया ना? सिंपल मैथ है बिल्कुल. तो ये बन जाएगा प्लस. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको ये बुक में सॉल्व करना एक दो एक्स्ट्रा स्टेप. आई राइट डाउन द डायरेक्टली. अब ये प्लस का इधर आ गया टर्म तो ये बन गया माइनस. सो दिस इज द माइनस h अपॉन km C1 e टू द पावर माइनस ml इज इक्वल टू में अभी थीटा, अब ये थीटा 0 मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो ये हो गया प्लस. सो थीटा 0 e टू द पावर माइनस ml और ये टर्म माइनस थीटा 0 e to the power, what is, which one? This one now. C1 e to the power minus ml theta 0 e to the power minus ml minus minus plus C1 e to the power minus ml is equal to minus h upon km C1 e to the power ml. Okay. Then this C2 is replaced by theta 0 minus C1. So theta 0 e to the power minus ml into h upon km plus C1 e to the power minus ml h upon km. So I write down all the values here. This one theta 0 e to the power minus ml, theta 0 e to the power minus ml into क्या है? h upon km guys. समझ में आ गया? सिंपल मैथ है, सिर्फ आपको अच्छे से आराम से ये पूरा डेरिवेशन सॉल्व करना है, कोई भी गड़बड़ नहीं करना है यहाँ पे सॉल्व करते समय. सो वी गेटिंग दिस इक्वेशन नाउ. तो वी सी हियर देन आफ्टर दैट, इसको मैं अभी रेस कर लेता हूँ पूरा. Then we solve this mathematics now. What is the remaining math here? So how solve this? See here. Okay. अब यहाँ पे C1 को कॉमन निकालो हर टर्म में से. So we take the common C1. तो what is remaining? E to the power ml plus e to the power minus ml. Okay. Plus here is what is h upon km e to the power ml minus h upon km e to the power minus ml is equal to क्या आएगा बच्चों? यहाँ से निकालो अभी थीटा 0 कॉमन, थीटा 0 e to the power minus ml कॉमन. तो यहाँ पे क्या बचा? 1 माइनस h upon km दिस टर्म. ठीक है. तुम यहाँ से भी h अपॉन km कॉमन निकाल सकते हैं. कौन से स्टेप में से? ये वाले भी. ठीक है, मैं बता देता हूँ. ये यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ अभी. हाँ, आपने इसको एक बार और एक स्टेप ऐड कर लेना.
ये जो टर्म है दोनों जगह पे कॉमन है, तो मैं निकाल लेता हूँ एच अपॉन के यम, यहाँ पे आएगा ई टू दी पावर एम एल माइनस ई टू दी पावर माइनस एम एल गाइस इज इक्वल टू. Then after that what is you getting all these things bracket complete, we determine the value of the C1. So C1 is equal to what is guys? C1 is equal to theta 0 e to the power minus ml in bracket 1 minus h upon km divided by, what is the dividation? E to the power ml plus e to the power minus ml plus h upon km e to the power ml minus e to the power minus ml, right? We solving this. ठीक है, अब ये वैल्यू मुझे मिल गई C1 की, तो अब C1 की मिलने के बाद में हम कौन सी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे? अभी C2 की गाइज. तो C2 की वैल्यू क्या थी देखिए अभी. What is our formula? Our formula is C2 is equal to theta 0 minus C1. अब ये C1 यहाँ पे पुट कीजिए, तो देखिए अभी आफ्टर पुटिंग what is we get? C2 is replaced by theta 0 minus C1 is how much? This term. You write down here this term theta 0 e to the power minus ml in bracket 1 minus h upon km bracket complete upon e to the power ml plus e to the power minus ml. ये वाली स्टेप लिख रहा हूँ मैं यार, एकदम आराम से सॉल्व करो डेरिवेशन, कोई भी गड़बड़ मत कीजिए. प्लस h अपॉन km e to the power ml माइनस ई टू दी पावर माइनस एम एल ब्रैकेट कंप्लीट्स. ओके, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं थीटा 0 के साथ में. देखिए अभी कैसा आएगा. C2 सॉल्व कीजिए बच्चों. ठीक है, सॉल्व कीजिए अभी. अब देखिए ये थीटा 0 यहाँ पे कॉमन है, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ पहले कॉमन थीटा 0 को. तो यहाँ पे बच जाएगा 1 ई टू दी पावर माइनस एम एल 1 माइनस एच अपॉन के एम अपॉन डिवाइड बाय ई टू दी पावर एम एल प्लस ई टू दी पावर माइनस एम एल प्लस एच अपॉन के एम इन ब्रैकेट ई टू दी पावर एम एल माइनस ई टू दी पावर माइनस एम एल. करो अभी सॉल्व करने के बाद में क्या मिलने वाला है देखिए. इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ से अभी. तो देखिए C2 की वैल्यू कितनी मिलेंगी. C2 थीटा 0 को अभी कॉमन ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. थीटा 0 ई टू दी पावर एम एल प्लस ई टू दी पावर माइनस एम एल प्लस एच अपॉन के एम ब्रैकेट ई टू दी पावर एम एल माइनस ई टू दी पावर माइनस एम एल. ओके, माइनस ई टू दी पावर एम एल विच वन माइनस एम एल 1 माइनस एच अपॉन के एम गाइज डिवाइडेड बाय ब्रैकेट कंप्लीट ई टू दी पावर एम एल प्लस ई टू दी पावर माइनस एम एल प्लस एच अपॉन के एम ई टू दी पावर एम एल माइनस ई टू दी पावर माइनस एम एल. इतना मैथ आ गया. अब आगे इसको होल सॉल्व करो, हर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो और टर्म को कैंसिल करो. तो देखिए अभी इसको मैं उड़ा देता हूँ, सिर्फ C1 की वैल्यू रखता हुआ भी है, ये कैंसल. C2, हाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C2? C2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये पूरा ब्रैकेट को अभी मैं सॉल्व करता हूँ, सिर्फ थीटा 0 रहता हूँ बाहर. थीटा 0 ई टू दी पावर एम एल प्लस
ई टू दी पावर माइनस एम एल प्लस ये एच अपॉन के एम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, एच अपॉन के एम ई टू दी पावर एम एल माइनस एच अपॉन के एम ई टू दी पावर माइनस एम एल। ओके, ये इसको मल्टीप्लाई करो अभी, माइनस ई टू दी पावर माइनस एम एल माइनस माइनस प्लस प्लस ई टू दी पावर माइनस एम एल, इसको हटा देता हूँ अभी, इंटू एच अपॉन के एम गाइज। ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टर्म, ई टू दी पावर एम एल प्लस ई टू दी पावर माइनस एम एल प्लस एच अपॉन के एम इन ब्रैकेट ई टू दी पावर एम एल माइनस ई टू दी पावर माइनस एम एल। बहुत ही बड़ा डेरिवेशन है लेकिन इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, सिर्फ थोड़ा शांति से ऐसे और समझ के सॉल्व करना है। तो अब क्या क्या कैंसिल होता है देखिए अभी, विच टर्म इज गेट कैंसिल हियर, ये वाली टर्म और ये टर्म होगी कैंसल, बराबर है, ये और ये होगी कैंसल, बराबर है। तो क्या बचा अभी देखिए बच्चों, C1 को मैं वैसे रखता, उसको इसको मैं कोई छेड़खानी नहीं करता, मैं अभी इसको हटा रहा हूँ सीधे, ये टर्म, ये C1 एज इट इज, C2 को सॉल्व करते हैं यहाँ से, अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी C2, व्हाट इज द रिमेनिंग, थीटा 0 इन ब्रैकेट ई टू दी पावर एम एल प्लस एच अपॉन के एम ई टू दी पावर एम एल ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन ई टू दी पावर एम एल प्लस ई टू दी पावर माइनस एम एल प्लस एच अपॉन के एम ई टू दी पावर एम एल माइनस ई टू दी पावर माइनस एम एल गाइड्स। ओके, अब यहाँ पे दोनों जगह पे ई टू दी पावर एम एल है तो इसको भी मैं कॉमन निकालता हूँ, तो C2 इज इक्वल टू थीटा 0 ई टू दी पावर एम एल ब्रैकेट 1 प्लस एच अपॉन के एम ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर एम एल। इसको सॉल्व कीजिए, ई टू दी पावर एम एल प्लस ई टू दी पावर माइनस एम एल प्लस एच अपॉन के एम ई टू दी पावर एम एल माइनस ई टू दी पावर माइनस एम एल। ये मिल गया हमारे को किसकी वैल्यू, C2 की वैल्यू, और ये हमारे पास में अभी C1 की वैल्यू। ओके, सो वी कैलकुलेट द टू वैल्यू C1 एंड C2। अब ये C1 और C2 को मैं कहाँ पुट करूँगा, हमारे मेन डेरिवेशन में। ओके, सो लेट्स सी हियर, okay, so we have to find out the value of C1 and C2. So today we have to stop here because of the very lengthy derivations. The remaining next portion we will be continue with our lecture number 44. Okay, in next lecture guys. So I stop here. In next lecture we have to prove the remaining part of the derivations. Okay, so I stop here now. If you like my videos, so please share my videos with your friends or another college friends and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. So stay at home, stay safe. Thank you very much.